चाहते हैं पास्टर के लिए, मक्का के लिए, हम खुशी से आते हैं उधर। सो मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, ये मेरा वाइफ है शिल्पी, ये ट्रांसलेट करेगी। ओके, सो आई वांट टू टॉक अबाउट सॉलिट्यूड टुडे। मैं एकांत रहने के बारे में बात करना चाहता हूँ। So I just want to share also about what Prashant shared about word, very good message. जो प्रशांत ने शेयर किया वचन के बारे में, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। It's a very good message ये बहुत अच्छा संदेश था and very required, very important for our lives. और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। He and his wife are a great friend for us. वो और उनकी पत्नी हमारे दोस्त हैं। Yeah, like solitude, it is not loneliness. एकांत रहना अकेलापन नहीं है। We are alone with God, हम परमेश्वर के साथ अकेले रहते हैं, but we are not alone. लेकिन हम अकेले नहीं होते। And when we are alone, we feel we are worried. जब हम अकेले होते हैं तो हमें चिंता होती है। We are craving for some relationship, worldly relationship, हम दुनिया में रिश्तों को चाहने लगते हैं, and there is no purpose in loneliness. लेकिन अकेलेपन के पीछे कोई मकसद नहीं होता। Wrong, negative thoughts come into our mind. गलत विचार हमारे मन में आते हैं। But when we are in solitude, जब हम एकांत होते हैं, we already have like an intimate relationship with God. हमारा परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी रिश्ता होता है There is a purpose, और उसका एक मकसद होता है। and He, like this communion with God, like intimate communion with God, it fulfills us, satisfies us. परमेश्वर की ये निकटता हमें सेटिस्फाई करती है। So, like it is said, solitude is a spiritual discipline. एकांत रहना एक आत्मिक डिसिप्लिन है, Like नियम। we have to do, it's good to do regularly. ये हमें हमेशा करते रहना चाहिए। Like we wake up, we brush, हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, we take bath. हम नहाते हैं, Some people put makeup. कुछ लोग मेकअप करते हैं। Some people are naturally beautiful without makeup. So like that, every day we spend time with God. और हर दिन हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। Like prayer is a discipline. प्रार्थना एक डिसिप्लिन है, Meditation is a discipline. मनन करना एक डिसिप्लिन है, Like reading the word is a discipline. परमेश्वर का वचन पढ़ना एक डिसिप्लिन है। These will be effective when we are doing it alone with God. जब हम एकांत में परमेश्वर के साथ ये करेंगे तो ये एक अच्छी बात होगी। There are so many sounds and voices around us. हमारे आसपास बहुत सारी आवाज़ें हैं, Lot of distractions. बहुत सारे चीज़ों से हम भटक सकते हैं। And this is the main one. ये सबसे बड़ी है। Like calls, messages, alarms, many different sounds. जो हमारे मोबाइल में अलग अलग तरीके की आवाज़ें होती हैं। And then maybe people around us, the हमारे environment आसपास around us, हमारे आसपास के वातावरण, and like those things like occupy our minds. वो चीज़ें हमारे मन में जगह ले लेती हैं। And in our busy lives with work, family, हमारे रोज के नियम में जैसे हम परिवार के साथ रहते हैं, काम करते हैं, we can think how much time am I spending with God? हम सोच सकते हैं कि हम रोज़ परमेश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं। But it is very important. ये बहुत ज़रूरी है। Like we can think of how can I grow my relationship, personal relationship with God? हम सोच सकते हैं कि मैं अपना परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे बढ़ा सकता हूँ। How do we have a relationship, like maybe a friendship? हमारी दोस्ती कैसी होती है? Can we have a relation without talking or spending time with another person? क्या हम किसी के साथ बिना बात किए या उसके साथ बिना समय बिताए रिश्ता बना सकते हैं? Today people do Facebook friendship. आजकल लोग फेसबुक में फ्रेंड बनाते They हैं don't know them, जो एक दूसरे को जानते नहीं, but they send a friend request or accept a friend request. वो एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं और दूसरे लोग की रिक्वेस्ट को भी They accept never कर spend लेते हैं। time, वो कभी साथ में समय नहीं बिताते, but they are Facebook friends. बट वो फेसबुक फ्रेंड होते हैं। But we are not talking about such a relationship. हम उस रिश्ते की बात नहीं कर रहे। Like we hear
maybe in your family, your friends, you spend time together, you get to know them over a time of period, then there is a strong relationship. जब आप परिवार में अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तब आप उनको अच्छे से जान सकते Like हैं। for our spiritual life with God, we need to spend time with God so that we can get to know Him personally. हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने हमारे जीवन में परमेश्वर हो सकता है। And of this solitude comes with silence. Silence and quietness is a part of solitude. एकांत रहना शांत रहने से आता है। It's an important, silence and quietness is an important part. शांत रहना, चुप रहना जरूरी है, जरूरी हिस्सा है। But it is not valued by the world. लेकिन दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं है। If you are quiet, like you are considered like introvert. अगर आप शांत हैं तो लोग सोचेंगे कि आप किसी से बात नहीं करते या घमंडी हैं। Introvert, like एक दूसरे से बात नहीं करते। But world is full of like performance activities. दुनिया में हम देखते हैं कि हर जगह लोग अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं अलग अलग चीज़ों के Like द्वारा। I have to do something every time. कि हमें हमेशा कुछ करना पड़ेगा। I want to update my Facebook status and WhatsApp status. Today I did these things. Tomorrow I did these things. कि मुझे अपना फेसबुक स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करना था कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। Full of activities. आज बहुत सारी चीज़ें की। But silence is valued. Silence and solitude is valued by God. चुप रहना, एकांत में रहना परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। Like let's see, like Jesus Christ. Yeah, we'll see one or two verses. Like we maybe Mark 1:35. मरकुस का 1:35 हम देखेंगे। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। Maybe Luke 4:42. जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक जंगली जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। Like we can see Jesus Christ, like he was busy, like in his ministry. Many people came to him. हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह बिजी थे, उनके पास काफ़ी लोग आए जब वो सेवा कर रहे थे। He had his own disciples to minister to, train to. उनके खुद के चेले थे जो उनको मिनिस्ट्री में मदद कर रहे थे। But he went alone many times लेकिन वो काफ़ी बार अकेले एकांत में गए with God the Father. पिता के साथ। He separated himself. He didn't say, "I'm going to a alone time." He just went away from the crowd. उन्होंने खुद को अलग किया, उन्होंने किसी से कहा नहीं, लेकिन वो भीड़ को छोड़ के एकांत में चले जाते Because he थे wanted to spend time with his Father and to receive from him. क्योंकि वो अपने पिता के साथ समय बिताना चाहते थे, उनसे सुनना चाहते थे। We'll see read from Exodus 33. निर्गमन 33 में हम देखेंगे verses 7 to 10. 7 से 10। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वर दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जब मूसा तंबू के पास जाता तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। 11 also, being alone with God. परमेश्वर के साथ एकांत में जाना। Like in Matthew 6:6, the verse says, no, Jesus is saying, when you pray, go into your room, shut the door, and pray to the Father who is in secret. मत्ती 6:6 में हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, अपने दरवाजे को बंद कर। This is also a picture of solitude.
ये भी एकांत में रहने का एक दृश्य है Like I am alone with God. कि मैं परमेश्वर के साथ अकेले होता हूँ। I'm shutting the door. मैं दरवाजे को बंद करता हूँ। I'm preventing any distraction मैं किसी भी डिस्ट्रैक्शन को रोक रहा हूँ आने से, so that it's just me and God. ताकि उस जगह पे सिर्फ मैं और परमेश्वर हो। Let's see few things. Why we need to do this personal time, this time alone with God. हमें ये करने की क्यों ज़रूरत है? हमें क्यों परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताना है? Like, firstly, it's just He's God, and I just want to enjoy His presence in my life. क्योंकि वहाँ परमेश्वर होता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेना है। Like this holy, high God is willing to spend time with me. I'm so glad to spend time with Him. क्योंकि वो पवित्र और ऊंचा परमेश्वर है, वो चाहता है कि वो हमारे साथ समय बिताए। And second, I was sharing, like, unless I spend time with Him, how will I get to know Him and have a relation with Him? और दूसरी बात, अगर मैं उसके साथ समय नहीं बिताऊंगी तो हम उन्हें कैसे जानेंगे And to grow in और relation with Him. परमेश्वर के साथ रिश्ते में कैसे बढ़ेंगे? And thirdly, to receive from Him, और तीसरी बात, परमेश्वर से ग्रहण करना, like through word and prayer, I'm receiving from His wisdom, from His word. वचन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बुद्धि ग्रहण करना। And what happens when I'm alone with God continually, regularly? और क्या होता है जब मैं लगातार परमेश्वर के साथ एकांत में जाता हूँ? Like we are spiritually fed. हम आत्मिक रूप से भरे जाते हैं। God is something giving personally. We receive personal remas for a spiritual life. परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमें रेमा देता है। So like we have an inner man, our soul, हमारे अंदर प्राण है and it is strengthened और वो ताकतवर होता है because we are receiving spiritually. क्योंकि हम आत्मिक रूप से परमेश्वर से ग्रहण करते हैं And we are equipped for the battle or for that day. और हम लड़ाई के लिए तैयार किए जाते हैं। See, each day we have different warfare. हर एक दिन हमारे जीवन में लड़ाई होती है। In Ephesians 6, it says about the different weapons, spiritual weapons for the warfare. इफिसियों 6 में हम देखते हैं अलग-अलग तरीकों के हथियारों के बारे में लिखा It's है। like during the time with God, we are putting this armor on us. परमेश्वर के साथ समय जब हम बिताते हैं उस समय हम उन आत्मिक Weapons, वेपन्स को हम पहन लेते हैं, हथियारों को पहन लेते हैं like so that we are ready for the battle. ताकि हम बैटल के लिए तैयार हो जाए, युद्ध के लिए तैयार हो जाए। See this devil, the world, the sin nature is ready every day. शैतान हमेशा रहता है, तैयार रहता है, हमारा पापी स्वभाव हमेशा तैयार रहता है। And if we don't spend time with God, we can be unprepared and unprepared for the battle ahead. We can fall easily. अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे तो हम जल्दी से गिर सकते हैं। And thirdly, like we receive from God for us and also others. We have something to minister to people. और तीसरी बात, जब हम परमेश्वर से ग्रहण कर सकते हैं, हम दूसरों को भी बता सकते हैं। Like there are so many people around us in our work, in our family, in our neighborhood. Like they need God's word. हमारे चारों तरफ हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे काम की जगह पर लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत We होती है। spend time with God, we receive from Him, and we can minister to people. हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम उससे ग्रहण करते हैं और हम दूसरों को दे सकते If हैं। we don't receive from God, we don't have anything to minister. अगर हम परमेश्वर से ग्रहण नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी कुछ नहीं दे पाएंगे। No, in one kingdom. लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं होता। In the world, there are so many big things happening. दुनिया में कितनी बड़ी-बड़ी चीजें हो रही है, But God may not be in them. पर शायद परमेश्वर उसमें नहीं होगा। But God, then it says, then God speaks through a still small voice. लेकिन वहाँ लिखा है कि परमेश्वर एक धीमी आवाज में उनसे बात करता है। A still small voice. एक धीमी आवाज। If our mind is has some other voices already अगर हमारे दिमाग में और आवाजें सुनाई दे रही होंगी from different sources, अलग-अलग जगहों से, I cannot hear this still small voice. मैं उस धीमी आवाज को नहीं सुन पाऊंगा। When I'm in a secluded place, अगर मैं एक एकांत स्थान में when होऊंगा, I'm alone with God, मैं परमेश्वर के साथ एकांत में होऊंगा, I have peace and calmness in my heart.
मेरे दिल में एक शांति होगी। I can hear from this voice, which मैं is परमेश्वर से उस आवाज को सुन पाऊंगा। so. This is for a spiritual life. ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए You है। know, it's our own responsibility. ये हमारी खुद की It's our रिस्पॉन्सिबिलिटी own है। decision. ये हमारा खुद का डिसीजन है I want to know God. कि मुझे परमेश्वर को जानना I है, want to have a personal relationship with Him. कि मुझे परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता And बनाना I है, want to receive from Him. कि मुझे उससे ग्रहण करना है। And solitude, this discipline of solitude can really help us. एकांत का नियम बनाना हमें मदद कर सकता है। And then, there is an unhealthy extreme to this also. और इसका एक There is an extreme इससे ज़्यादा भी हो सकता है which is not good. जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। Like some people think that what if I go away from the society, keep me separate. कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं इस संसार से दूर चला गया, खुद को अलग कर लिया। Like there are monks who go into the forest, they live for many years away from the world. हम देखते हैं कुछ संत लोग जैसे पहाड़ पे चले जाते हैं, पूरी दुनिया से खुद को अलग कर लेते हैं। God doesn't want us to do that. परमेश्वर नहीं चाहता हम वैसा Because करें। God has placed in this world to share about Him, the gospel, to bring people into His kingdom. परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं और उसके राज्य में लोगों को लेके आए, Just for us to be aware about it. कि हम उसे जानें। So you can think about solitude. आप सोच सकते हैं एकांत रहने के बारे में। We can encourage ourselves to